السلام علیکم۔ آج منگل ہے، دسمبر کی 21 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ امریکی صدر جو بائیڈن کو 46 بیشتر ڈیموکریٹ قانون سازوں کے گروپ نے پیر کو ایک خط لکھا ہے جس میں ان پر زور دیا گیا ہے کہ وہ افغانستان میں بڑھتی ہوئی انسانی تباہی کو روکنے میں مدد کے لیے فوری دانشمندانہ اقدامات کریں۔ قانون سازوں نے بائیڈن سے جاری تعزیری پابندیوں میں نرمی کرنے اور افغان مرکزی بینک کے غیر ملکی ذخائر سے پابندی اٹھانے کی تجویز دی ہے۔ اگست کے وسط میں طالبان کے ملک کا کنٹرول حاصل کرنے کے فوراً بعد واشنگٹن نے ان اثاثوں کو منجمد کر دیا تھا۔ وائٹ ہاؤس نے اس کے جواب میں کہا ہے کہ اس سلسلے میں کچھ مجبوریاں ہیں، لیکن امریکہ افغانستان میں انسانی ہمدردی کی کوششوں کی حمایت جاری رکھے ہوئے ہے۔ خط میں طالبان حکومت کی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں، سول سوسائٹی کے خلاف کریک ڈاؤن اور خواتین پر جبر کی مذمت کی گئی ہے۔ تاہم کہا گیا ہے کہ حکام کے ساتھ حقیقت پسندانہ عملی رابطہ کاری لاکھوں خواتین، بچوں اور معصوم شہریوں کو نقصان سے بچانے کے لیے اہم ہے۔ وائٹ ہاؤس کی پریس سیکرٹری جین ساکی نے اس خط کے بارے میں وائس آف امریکہ کے سوال کا جواب دیتے ہوئے صحافیوں کو بتایا کہ 11 ستمبر سن 2001 کے حملوں اور دیگر دہشت گردانہ حملوں کے متاثرین کی جانب سے طالبان کے خلاف دائر کی جانے والی قانونی چارہ جوئی کی وجہ سے ان اثاثوں پر پابندی ہے۔ طالبان پر امریکہ کی طرف سے خصوصی طور پر نامزد عالمی دہشت گرد گروپ کے طور پر پابندیاں برقرار ہیں۔ یہ صورتحال بھی یقینی طور پر تبدیل نہیں ہوئی ہے، لیکن جاری قانونی چارہ جوئی ان فنڈز پر پابندی کو پیچیدہ بنا رہی ہے۔ ادھر اقوام متحدہ کی زیر قیادت فلاحی اداروں کا کہنا ہے کہ افغانستان میں تیزی سے بگڑتی ہوئی صورتحال کے پیش نظر موجودہ اقدامات سے کہیں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اقوام متحدہ کے ہیومینیٹیرین سربراہ مارٹن گریفتھس نے اتوار کو خبردار کیا کہ افغانستان کی معیشت زوال پذیر ہے، اور اگر ہم نے فیصلہ کن طور پر ہمدردی کے ساتھ کام نہیں کیا تو اندیشہ ہے کہ یہ زوال پوری آبادی کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ پاکستان کے ایک روزنامہ میں ڈیلی ڈان کی ایک رپورٹ کے مطابق امریکی حکومت افغانستان کو انسانی امداد کی فراہمی کا راستہ ہموار کرتے ہوئے مالی پابندیوں پر نرمی پر غور کر رہی ہے۔ محکمہ خارجہ کے ایک اہلکار نے پیر کو اسلام آباد میں نامہ نگاروں کے ایک گروپ سے بات کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ افغانستان میں رقم کی فراہمی کی اجازت دے گا۔ کلیدی پاکستانی اخبار نے اہلکار کے حوالے سے کہا کہ رقم کی کمی کے شکار ملک میں مزید نجی ترسیلات کی اجازت دی جائے گی۔ 57 رکنی اسلامی تعاون تنظیم نے افغانستان بینک کے ذخائر کے اجرا اور طالبان پر امریکی پابندیوں میں نرمی کے لیے کوششیں کرنے کا وعدہ کیا ہے۔ اگر پابندیوں میں کچھ لچک آتی ہے تو پھر افغان اداروں، اسکولوں اور ہسپتالوں کو انسانی امداد یا معاشی وسائل کی فراہمی میں رکاوٹ نہیں آئے گی۔ روزنامہ ڈان نے امریکی اہلکار کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ ہم نے پس پردہ خاموشی سے ملک کے اندر بڑی مقدار میں رقم کی فراہمی کے لیے کام کیا ہے، اور طالبان اس کوشش میں تعاون کر رہے ہیں۔ توقع ہے کہ واشنگٹن جلد ہی مزید لائسنس جاری کرے گا تاکہ ذاتی ترسیلات کی فراہمی ہو سکے۔ امریکہ کی طرف سے اس طرح کے 3 لائسنس پہلے ہی جاری کیے جا چکے ہیں۔ تاہم امریکہ چاہتا ہے کہ منتقل کی گئی رقم کو دہشت گرد گروہوں تک پہنچنے سے روکنے کے لیے نگرانی کا ایک طریقہ کار موجود ہو۔ اہلکار نے کہا کہ افغان اثاثوں کا فوری اجرا عدالتی مقدمات کی وجہ سے ممکن نہیں۔ انہوں نے افغانستان میں انسانی بحران روکنے کے لیے زیادہ سے زیادہ علاقائی اور بین الاقوامی امداد پر زور دیا۔ رپورٹرز وداؤٹ بارڈرز RSF اور افغان انڈیپینڈنٹ جرنلسٹس ایسوسی ایشن AIGA کے ایک سروے کے مطابق طالبان کے اقتدار سنبھالنے کے بعد سے افغان میڈیا کے منظرنامے میں ایک بنیادی تبدیلی آئی ہے۔
15 अगस्त से अब तक कुल 231 मीडिया इदारों को बंद करना पड़ा है और 6,400 से ज्यादा सहाफ़ी अपनी मुलाजमतों से हाथ धो बैठे हैं। ख़वातीन सहाफ़ियों को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है। आरएसएफ और मकामी हलीफ इदारे आइजा के सर्वे के मुताबिक हर 10 में से 4 से ज्यादा मीडिया आउटलेट्स गायब हो चुके हैं और 60% सहाफ़ी और मीडिया मुलाजमीन अब काम करने के काबिल नहीं हैं। ख़वातीन को मर्दों के मुकाबले में बहुत ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है। इनमें से 84% अपनी मुलाजमतें खो चुकी हैं। आलमी इदारे खुराक ने इंतबाह जारी किया है कि अफगानिस्तान में आइंदा चंद रोज के अंदर मौसम सरमा मजीद शिद्दत इख्तियार करेगा और दूर दराज इलाकों तक रसाई मुमकिन नहीं रहेगी। ऐसे में अगर अब भी कुछ न किया गया तो फिर देर हो चुकी होगी और अफगानिस्तान के लाखों लोगों को भूख के बहरान के सानहे से कोई नहीं बचा पाएगा। इस अलमिया को रूनुमा होने से रोकने के लिए आलमी इदारा खुराक अफगानिस्तान में अपनी जानिब से इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदादी काम को तेज कर रहा है। इदारे ने, जिसने सन 2021 के दौरान 1 करोड़ 50 लाख अफगानों को खुराक की सूरत में इमदाद फराहम की थी, कहा है कि आइंदा साल इस इमदाद में इजाफा करते हुए उसकी जानिब से 2 करोड़ 30 लाख अफगान अवाम को ग़िज़ाई इमदाद फराहम की जाएगी। आलमी इदारे सेहत की इत्तला के मुताबिक अफगानिस्तान में इस मौसम सरमा के दौरान 5 साल से कम उम्र के तमाम बच्चे, जिनकी तादाद 32 लाख है, ग़िज़ाइयत की शदीद कमी का शिकार होंगे। आलमी इदारे खुराक के तर्जुमान मिस्टर थॉमसन फेरे ने कहा है कि साल सन 2022 में आलमी इदारे सेहत अपने जारी प्रोग्राम की सतह में इजाफे का इरादा रखता है। उन्होंने कहा कि हमारा इरादा है कि हम स्कूल के बच्चों को खाना फराहम करें, घरेलू राशन की जरूरियात पूरी करने में मदद दें और मुल्क भर के 10 लाख बच्चों को नकदी की सूरत में इमदाद मैसर करें। आलमी इदारे सेहत ने कहा है कि आइंदा साल 2 करोड़ 30 लाख अफराद की जिंदगी बचाने के काम के लिए 2 अरब 60 करोड़ डॉलर की फौरी जरूरत होगी। पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के हवाले से कहा है कि बल्दियाती इंतखाबात में पीटीआई के गलत उम्मीदवारों का चुनाव शिकस्त की वजह बनी। वजीर आजम इमरान खान ने सोशल मीडिया पर एक बयान में कहा है कि पीटीआई ने खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले में गलतियां की और उसकी कीमत अदा की। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में बल्दियाती इंतखाबात के पहले मरहले के अब तक के नताइज के मुताबिक जमीयत उलमाए इस्लाम फे सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी है। खैबर पख्तूनख्वा में JUI की कामयाबी पर वफाकी वजीर फवाद चौधरी का कहना है कि पीटीआई की लीडरशिप और कारकुनान इस सूरत हाल में जाती इख्तलाफात को पसे पुष्ट डाल दें और इमरान खान की क़यादत में खुद को मुनस्सम करें। पाकिस्तान में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ की सूबे खैबर पख्तूनख्वा के बल्दियाती इंतखाबात में नाकामी के बाद मुल्क की सियासत में एक नई हलचल पाई जाती है। हुकूमती रहनुमा जहां इस शिकस्त को पार्टी के अंदरूनी इख्तलाफात और उम्मीदवारों का गलत इंतखाब करार दे रहे हैं, वहीं साबिक सदर और पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी के इस बयान ने माहौल को मजीद गरमा दिया है कि मुख्तदर कुव्वतें उनसे सियासी बहरान के खात्मे के लिए फार्मूला मांग रही हैं। मुबसरीन समझते हैं कि तहरीक इंसाफ की हुक्मरानी में अच्छी कारकर्दगी न दिखाना और हुकूमती रहनुमाओं का कारकुनों से अदम राब्ता शिकस्त की बुनियादी वजूहात हैं। इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तान की सरहद के करीब पंजाब सेक्टर में रूसी साख्ता दिफाई फजाई निज़ाम S-400 मिसाइल सिस्टम की तनसीब शुरू कर दी है। भारतीय नशरियाती इदारे इंडिया टुडे के मुताबिक भारतीय फौज के जराये ने तस्दीक की है कि S-400 एयर डिफेंस मिसाइल स्क्वाड्रन पंजाब सेक्टर पर नस्ब किया गया है। रूस ने हाल ही में S-400 मिसाइल सिस्टम की भारत को सप्लाई शुरू की थी। अरबों डॉलर के इस माहदे पर अमेरिका ने अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया था। ताहम भारत ने इस मिसाइल सिस्टम को अपनी कौमी सलामती के लिए नागुज़ीर करार दिया था।
भारतीय एयरफोर्स का कहना है कि मिसाइल सिस्टम की बैटरीज चीन और पाकिस्तान की जानिब से किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए काफी होंगी। कराची की मकामी अदालत ने पीर के रोज नारायणपुरा के इलाके में एक मंदिर पर हमला करके नुकसान पहुंचाने के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम को 7 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। दूसरी जानिब पुलिस ने मुकदमे में इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की दफात को भी शामिल कर लिया है। उधर पाकिस्तान हिंदू पंचायत का कहना है कि अगरचे ये वाकया एक इनफरादी अमल दिखाई देता है, लेकिन पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुलजिम को गिरफ्तार किया और उसके खिलाफ तौहीन मजहब की दफात के तहत पर्चा भी दर्ज कर लिया गया, जो एक नेक शुगून है और इससे पाकिस्तान में मुकीम हिंदू बिरादरी को किसी हद तक एहसास से तहफ़्फ़ुज़ पैदा होगा। ताहम उनका कहना है कि मुस्तक़बिल में ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए मुलजिम को करार वाकई सजा दिलाना भी जरूरी है। उधर इंसानी हुकूक के कारकुनों ने भी वाक़े की शदीद अल्फाज में मजम्मत की है। व्हाइट हाउस ने पीर को कहा है कि अमरीका रूस के साथ मुताद्दिद चैनल्स के जरिए सिफारती बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन वाज़ेह किया कि मॉस्को को यूक्रेन की सरहद के साथ अपनी फौजी गठबंदी के बारे में मगरबी खदशात को दूर करना चाहिए। अमरीकी कौमी सलामती के मुशीर जैक सलिवन ने अपने हम मनसब रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन के खारजा पॉलिसी के मुशीर यूरी युशकोव के साथ बात की और व्हाइट हाउस ने कहा कि अमरीका क्रेमलिन के साथ साथ नेटो, रूस कौंसिल और यूरोप में सलामती और ताउन की तंजीम के जरिए बराह रास्त बात करने को तैयार है। अमरीका के सदर जो बाइडन ने 2 हफ्ते कबल एक वर्चुअल समिट में पुतिन को खबरदार किया था कि अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो अमरीका रूस के खिलाफ सख्त इक्तिसादी पाबंदियां आयद करेगा। सलिवन और शकोफ कॉल के बारे में मॉस्को की तरफ से फौरी तौर पर कोई तबसरा नहीं किया गया। पेंटागन के ओहदेदार सफ़ों में इंतहा पसंदी में इजाफे के इंतबाह के साथ नए तफसीली कवायद जारी कर रहे हैं, जिसमें सर्विस अरकान को शिद्दत पसंदाना सरगर्मियों में फ़आल तौर पर मुलव्वस होने से मना किया जा रहा है। यूएस कैपिटल में हंगामा आराई के तकरीबन 1 साल बाद नए रहनुमा खतूत सामने आए हैं, जब मुतअद्दिद मौजूदा और साबिक सर्विस एहलकार उसमें मुलव्वस हुए थे, जिसके नतीजे में महकमे की सूरत हाल का जायजा लिया गया। सीनियर दिफाई हुक्काम ने एसोसिएटेड प्रेस को बताया कि 100 से कम फौजी अरकान के बारे में मालूम हुआ है कि वो गुज़श्ता 1 साल में इंतहा पसंदाना सरगर्मियों के वाक़यात में मुलव्वस हुए हैं। उन्होंने खबरदार किया कि दाखिली पुरतशद्दुद इंतहा पसंदी खासतौर पर साबिक फौजियों में हालिया इजाफे के पेश नज़र इस तादाद में इजाफा हो सकता है। बाइडन इंतजामिया जमीन को गर्म करने वाली ग्रीन हाउस गैसों के अखराज को नुमाया तौर पर कम करने के लिए गाड़ियों के माइलेज के मेयार को बढ़ा रही है, जो मौसमियाती तब्दीलियों का मुकाबला करने के लिए एक अहम कदम है। पीर को जारी किए जाने वाले कवायद के तहत सन 2023 के मॉडल साल से माइलेज के मेयार को बढ़ा दिया जाएगा और सन 2026 तक 1 गैलन में 40 मील के मुतवक्के सनती हदफ तक पहुंचा जाएगा। कोरोना वायरस से मुताल्लिक खबरें। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल टेड्रोस गैब्रियेसस ने गुज़श्ता हफ्ते एक न्यूज़ ब्रीफिंग में बताया था कि इस वक्त तक दुनिया के 77 मुल्कों में ओमिक्रॉन के केसेस सामने आ चुके हैं। उनका यह भी कहना था कि यह हकीकत है कि कोरोना का ये वेरिएंट दुनिया के ज्यादातर मुल्कों में पहुंच चुका है, अगरचे कई एक में ताहाल इसकी शनाख्त सामने नहीं आई है। उन्होंने सहाफियों को बताया कि परेशान कुन बात यह है कि यह वेरिएंट गुज़श्ता तमाम जीनियाती अक़साम के मुकाबले में कहीं ज्यादा तेज रफ्तारी से फैल रहा है और लोग ये समझ रहे हैं कि ये ज्यादा मोहलिक नहीं है। लेकिन अब जो आदात-ओ-शार समाज सामने आ रहे हैं वो ये जाहिर करते हैं कि हम शुरू में इसे सही तौर पर समझ नहीं सके। व्हाइट हाउस के सेहत से मुताल्लिक आलमशी डॉक्टर एंथनी फाउची ने कहा है कि कोविड-19 की नई जीनियाती किस्म ओमिक्रॉन तेजी से दुनिया को अपनी लपेट में ले रही है और सदर बाइडन मंगल के रोज वैक्सीन न लगवाने वाले अमरीकियों के लिए एक सख्त इंतबाह जारी करने वाले हैं कि सर्दियों के मौसम में उन्हें किस तरह की सूरत हाल का
सामना करना पड़ सकता है। उनका कहना था कि वैक्सीन न लगवाने वाले लोग मुल्क भर के अस्पतालों के लिए हकीकी खतरा बन सकते हैं, क्योंकि उन लोगों की तादाद अब भी बहुत ज़्यादा है जिन्होंने अभी तक वैक्सीन हासिल नहीं की। वबाई अमराज के माहिर डॉक्टर फाउची का कहना था कि आने वाला सर्दियों का मौसम आलमगीर वबा की दोबारा वापसी के एतबार से इंतहाई सख्त हो सकता है, जो उससे बिल्कुल मुख्तलिफ सूरत हाल है। जैसा कि सदर बाइडन ने कई महीने पहले कहा था कि इस बार क्रिसमस और उसकी तातुलात कोरोना वायरस के फैलाव से पहले जैसी नॉर्मल होंगी। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट, यूट्यूब और पॉडकास्ट पर ये बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं, सुन सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना ना भूलिएगा। खालिद हमीद अब इजाजत चाहता है। अल्लाह हाफिज।